हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा देखिए, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई एज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। अब देखते हैं कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो वेरी करती हैं पीरियोडिक टेबल में एंड इम्पॉर्टेंट भी है। लेट्स सी सम अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा। First, we discussed already about atomic radii, atomic radius, size of the atom, variation top to bottom increases, left to right decreases. Inert gases have the largest atomic radii in the corresponding period due to their van der Waals radii. इसमें आपने डिस्कशन की कोवेलेंट, van der Waals and metallic radius in detail, as well as ionic radii we discuss. Now second periodic property is आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं आज आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी represented as delta H EG, delta H IE. It is also known as ionization energy. इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। और बेटा इसी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। एक ही चीज है सभी, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बाय डेफिनेशन ऑलमोस्ट थ्री सेम। हाँ, यूनिट के बेसिस पर हम इसे डिफर कर सकते हैं, वो मैं आपको डेफिनेशन के साथ मेंशन कर रहा हूँ। बेटा टर्म आयनाइजेशन एनर्जी, ionization word you can understand. Ionization, that is the conversion into the ions. Ionization term generally we use when we remove electron from the isolated atom so that it becomes as an ion, that is cation. कुछ ऐसा ही है। Ionization को समझने के लिए आप समझिए, suppose you have an element X as an isolated gaseous atom, single one, isolated gaseous atom, and if you want to convert it into the cation, that means if we remove one electron from here, अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो ये एलिमेंट एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा, कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम किसी एटम से, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बेटा आप सभी जानते हो किसी भी एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। एंड इफ यू वांट टू रिमूव दिस वन, डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। किसी की बॉन्डिंग को ब्रेक करना हो तो हमें एनर्जी चाहिए। सो टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन फोर्स or to remove electron from the atom, we have to provide some energy, and this energy is nothing called ionization energy. It's an endothermic process. You have to provide the energy. बस इसी के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, देख लीजिए। डिफाइंड एज the amount of energy required to eject an electron from the isolated gaseous atom. From the isolated gaseous atom,
per mole. This is the ionization energy. The amount of energy required to eject, release करना electron from the isolated gaseous atom per mole is called its ionization enthalpy. We say ionization enthalpy if we represent in kilocalorie. We say ionization energy when we represent this amount of energy in form of kilojoule. And we say same thing, ionization potential, if we express this amount of energy in the electron volt. And as you know, all these three are the units of energy. And these three units of energy related as you know, 1 calorie is the 4.2 joule. 1 electron volt is the 1.6 10 per minus 19 joule. ये conversions हैं. So this is the amount of energy required to eject electron from the isolated gaseous atom per mole called ionization energy, ionization potential, ionization enthalpy. This is the amount of energy which is required. For example, suppose we have sodium gaseous atom. Sodium gaseous atom. As you know, its electronic configuration 281, and the amount of energy required to convert sodium to sodium ion by removing one electron, definitely we have to need some amount of energy to release one electron. इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो एनर्जी देनी होगी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है बेटा, इसी आयनाइजेशन एनर्जी को हम एक दूसरे टर्म में, इसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं. कई बार क्या होता है, किसी एलिमेंट से हमने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. सो इफ यू आस्क what do you mean by successive ionization energies? Successive means repeatedly. For example, if we remove one electron, but remember it should be isolated gaseous atom. Its state should be isolated gaseous atom. When we remove first electron, then the amount of energy known as its first ionization energy. But when further from this gaseous ion we remove another electron, then this becomes 2 plus charge. अगर आप किसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर 2 plus चार्ज आएगा बेटा, and it is called second ionization energy. And when we remove another electron from this atom, then it becomes triple positive charge. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जाते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है. इट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. कुछ इस तरीके की वर्डिंग अगर कहीं पे लिखी है, दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. Successive ionization energies generally increases from the previous one. जैसे जैसे बेटा आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे और आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा बढ़ती रहेंगी. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर कहा जाए, जनरली ionization energy decreases on moving top to bottom in the group. If you study in periodic table, this is the ionization energy order in the group, but in periods generally ionization energy increases. जैसे जैसे आप आगे जाओगे ionization energy बढ़ेगी, along the period it increases. And remember, inert gases have largest ionization energy
in the corresponding period. अपने अपने पीरियड में इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैसेस की मैक्सिमम होती है. इन जनरल helium has the most and cesium has the least ionization energies in the table. अगर हम टेबल की बात करते हैं तो हीलियम की मोस्ट है और सीजियम की लीस्ट है. ओके, ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी. कि कौन कौन से फैक्टर्स, कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, आई विल डिस्कस लेटर, बट दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन. नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा मैं इसके फैक्टर्स, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस पर. बट फर्स्ट अगर कोई आपसे पूछता है आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या है, पीरियोडिक टेबल में इनका वेरिएशन कैसे है, देन इट्स अ बेसिक आइडिया फॉर सब्जेक्टिव ओनली. ओके, नाउ another property, periodic property I am going to discuss, it is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, इसको आप डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, नाम से पता लगता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को लूज कराते थे तो एनर्जी देनी पड़ती थी. इसमें हमने इलेक्ट्रॉन गेन कराना है. अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी उसके साथ एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है. तो देखिए कैसे, जब आपके पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम हो और अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कराओ, एंटर, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर सकता है तो गेन करने के बाद उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायन बनेगा, एंड मोस्टली यहां से कुछ हीट रिलीज होती है. आप खुद देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई क्लोरीन एटम है. क्लोरीन, यू नो, नॉन मेटल, इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. अगर आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दो तो इसके पास 17 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, और वैसे भी आपको पता है ना, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन वेरी, ठीक है, फास्टली, बिकॉज इट वांट टू स्टेबलाइज इटसेल्फ टू अटेन इनर्ट गैस कन्फिगरेशन. इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है. 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसको लेकर के, इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट फिल करना चाहेगा, अपनी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्टिंग कुछ हीट रिलीज होगी. एक्सोथर्मिक बनेगा ये सिस्टम, यहां से कुछ हीट रिलीज होगी. इसी को बेटा हम जो भी हीट रिलीज होगी इसे हम इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे. इसलिए ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव में होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज जनरली नेगेटिव और एक्सोथर्मिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन enter to the atom and it start attracting with the nucleus. There is a bond formation. Remember, whenever bond formation or attraction take place, energy is released. And when you want to break the bond or break the attraction force, energy is required. Okay, so how can you define this all thing? Electron gain enthalpy defined as, it is only for subjective purpose. Electron gain enthalpy defined as the amount of heat or energy released उसमें required था, released when an extra electron, बाहर से, when an extra electron is added, gain करा, added to the isolated gaseous atom per mole.
पर मोल इट्स अ जनरल डेफिनेशन, इसलिए यहाँ पे पर मोल वर्ड हुआ है. द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा electron is added to the isolated gases at per mole. This is the electron gain enthalpy, जो एनर्जी रिलीज होगी लाइक दिस. ओके, अब आप समझ सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, okay, phosphorus, all these have electron deficiency. All these have incomplete octet and have tendency to gain electron. तो इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और काफ़ी लार्जर होती है, मच लार्जर. ध्यान रखना, ठीक है. अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इजीली गेन करता है, तो वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है. दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. बेटा यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सक्सेसिव का मतलब है अगर किसी स्पीशीज को आपने एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराया है और वो नेगेटिव में आ गया, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी. बट इफ यू एडेड अनदर इलेक्ट्रॉन इन इट, अगर आप इसमें और कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो देन इट बिकम्स टू नेगेटिव. और इस केस में इसका नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज रिपल्शन होगी. टू ओवरकम दिस रिपल्शन फोर्स, now successive electron gain enthalpy, this is the one electron gain enthalpy, this is the two electron gain enthalpy, it is positive because energy now it is required to overcome this repulsion forces. Remember, in the most of cases successive electron gain enthalpies are positive or endothermic. Okay, this is electron gain enthalpy. बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं. इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि हम इसका साइन अपोजिट करते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो भी साइन होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन उसका अपोजिट रखा जाएगा. मतलब अगर ये एनर्जी रिलीज्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव में शो करेंगे. बस नेगेटिव साइन का फर्क है एट 0 केल्विन. इट इज मेजर्ड एट 0 केल्विन. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन द पीरियोडिक टेबल वेरिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नॉन मेटल्स इज जनरली ग्रेटर. अभी आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूनियम, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें इनकी सबसे ज़्यादा होती है पूरी टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, हालांकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर, दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एफ. इसकी स्मॉल साइज करके, अदरवाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये एक्सेप्शन मिल गया. हमें सभी में एक्सेप्शन मिलेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन. लगता है ऐसे फ्लोरीन की ज्यादा होगी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ग्रेटर रिपल्शन. दिस थिंग आल्सो आई विल डिस्कस व्हेन आई discuss the factors affecting. Okay, similarly if we talk about for inert gases, noble gases like helium, neon, argon, xenon, radon, krypton, जानते हैं आप, krypton, xenon, radon, these are the inert gases. बेटा आपको पता है इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ठीक है. बट फिर भी अगर आप इनमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे जिसका ऑक्टेट फील्ड है फुली सेटिस्फाइड है, पूरा स्टेबल है, तो ये फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. इसलिए फॉर इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव.
Even first electron gain enthalpy is positive because they have a stable electronic configuration. Due to stable electronic configuration, their electron gain enthalpy is positive. Remember this thing. ठीक है. हालांकि जिनका भी स्टेबल कन्फिगरेशन होगा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, बेरिलियम also have positive value of electron gain enthalpy. इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. कोई इनर्ट गैसेस है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, दिस इज ड्यू टू स्टेबल कन्फिगरेशन. दिस एक्सेप्शन इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम. तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की. इसमें एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो भी बता ही देता हूँ. दिस वीडियो इज ओनली फॉर सब्जेक्टिव पर्पस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी represented by this one, short form EN. Electronegativity. This is another important property in the periodic table. Basically, it is a tendency. It's a tendency to attract electrons pair from the chemical bond. Electronegativity has existence only when a bond formation takes place. When two atoms, the shared electrons, like bond formation take place, then the bonded electrons will shift in which direction or towards which atom. It will depend which one have greater electronegativity. For example, we have HCl. This is the bond formation of HCl. Now Cl has greater electronegativity, so these electrons shifted towards Cl. And as a result, H gets slightly positive charge and Cl gets slightly negative charge. Electronegativity basically decreases top to bottom, increases left to right. Fluorine most electronegative, cesium least electronegative in the periodic table. Okay, first three elements which are most electronegative are four. Different scientists with values of electronegativities, but this is the general view of the electronegativity. I will discuss in the next video what are the factors affecting as well as their characteristics and properties. Thank you. Thanks a lot.